Hello everyone. In this lecture, we will discuss about one of the popular algorithm for the graph traversal, that is depth first search algorithm. In brief, we will call it as DFS algorithm. So first of all, we introduce about the depth first search traversal algorithm. It is a graph traversal algorithm. There are actually two popular algorithm. One is the breadth first search and another one is the depth first search. In this lecture, we will see the depth first search in detail, how it is applied on any given graph. Either it is a simple graph or it is a digraph, means directed graph. So first of all, we have to choose a starting vertex. If not given, then you can take any vertex as a start vertex. But if in the problem it is given that any particular vertex is a start vertex, then you have to select only that vertex and start your algorithm on after choosing that vertex as a start vertex. So after selecting any start vertex, we go in a single direction, means we go deeper and deeper until we find such a node which has no any child node, means no any other further node from where we can move in any other direction. If we compare it with the traversal of the tree, then it is equivalent to the, or it is similar to the pre-order traversal of the tree. Because in tree we have studied about the pre-order, post-order and in-order traversal. So the DFS is equivalent to the pre-order traversal of the tree. In DFS we use the backtracking. Backtracking means जिस ट्रैक को हम फॉलो करते हुए आए थे अभी तक, अगर आगे हमें पाथ नहीं मिलता तो उसी पाथ पर हम पीछे जाएंगे, मीन्स बैक ट्रैक करेंगे. तो ये क्वेश्चन भी होता है कि बैक ट्रैकिंग कहाँ यूज होती है, डीएफएस में या बीएफएस में. तो हमारा आंसर है कि बैक ट्रैकिंग इज यूज इन द डीएफएस एल्गोरिदम. अब बात आती है कि डेटा इसको डीएफएस को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे. तो यहाँ पर जो डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा वो होगा स्टैक. अब मैं ब्रीफ में यहाँ बता दूं कि बैक ट्रैकिंग एक्चुअली होती क्या है, क्योंकि कई बार हम डेप्थ फर्स्ट सर्च को बैक ट्रैकिंग मेथड भी बोलते हैं. Because in this method we return or backtrack to the previously visited vertices to get some new unvisited vertex or non-visited vertices in the given graph. Means अगर हम जा रहे हैं नए नोड की, एक नोड से दूसरे नोड की तरफ, फिर तीसरे नोड की तरफ, और कहीं ऐसा डेड एंड आ जाता है जहां से हमें लगता है कि अब कुछ नया नहीं मिल रहा है, तो फिर हम उसी पाथ पे बैक ट्रैक करते हैं कि हो सकता है कि लास्ट नोड पे जो कुछ छूटा हो वहां से हमें कोई नया पाथ मिल जाए. इसको अभी हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे. So the main part of the DFS is the its procedure, means algorithm for the DFS. So in a simple way, we can represent it as step 1. In the first step, we take a empty stack and a blank traversal list. A stack which is used to implement the DFS, and traversal list is used to store all the vertices that we have visited or we will visit. In step 2, after selecting an empty stack and a blank traversal list, in second step, we select any vertex as a start vertex. If not given in the problem, then we can take any vertex as a start vertex. But if it is given, then we prefer that given vertex as a start vertex. Now in step 3, out of all the non-visited adjacent vertices to the top vertex of the stack, क्योंकि हमने जो पहली vertex start vertex चूज करी है उसको हम अपने स्टैक में स्टोर करते हैं, और स्टैक में हम किसको प्रोसेस करते हैं, जो टॉप मोस्ट नोड होता है. तो जो हमने अभी लास्ट में इंसर्ट किया है उस वर्टेक्स को, यानी उस टॉप मोस्ट वर्टेक्स जो हमारे स्टैक में है, वहां से हम एक नया वर्टेक्स ढूंढते हैं जो अभी अनविजिटेड हो. मीन्स इस वर्टेक्स का एडजेसेंट नोड ढूंढेंगे, उनमें जो ऐसे एडजेसेंट नोड होंगे जो अनविजिटेड होंगे उनकी तरफ मूव करेंगे. और इसमें भी एक हम कन्वेंशन यूज करते हैं कि अगर कई सारे नेबरिंग नोड हैं या एडजेसेंट नोड हैं तो हम उन्हें प्रेफर करते हैं जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहे हो या न्यूमेरिक ऑर्डर में पहले आ रहे हो. तो इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर या न्यूमेरिक ऑर्डर या इन ऑर्डर बोलते हैं. ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, एक जस्ट एक कन्वेंशन है, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करेंगे. अब स्टेप 3 को तब तक रिपीट करते रहेंगे
जब तक हमें नई नई वर्टिसेस मिलती रहेंगी। नई नई वर्टिसेस कौन सी? पुरानी जो अभी हमने पुश किया था वर्टेक्स स्टैक में, उसकी एडजेसेंट वर्टिसेस जब तक मिलती रहेंगी तब तक हम इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी कि अगर हमें ऐसा डेड एंड आ गया जहां से हम आगे कोई फर्दर हमें नया अनविजिटेड वर्टिसेस नहीं मिल रही हैं, तो स्टेप 4 पर आ जाएंगे। मीन्स इफ ऑल द एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ द टॉप वर्टेक्स ऑफ द स्टैक आर ऑलरेडी विजिटेड, मीन्स हमें कोई नई वर्टेक्स नहीं मिल रही है जो अनविजिटेड हो, सारी की सारी विजिटेड होंगी, तो हम बैक ट्रैकिंग स्टेप स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पॉप करते हैं। यानी कि इसमें दो ही चीजें रिपीट होंगी, पुश एंड पॉप। स्टेप 3 पुश के लिए है कि जब भी कोई नया अनविजिटेड वर्टेक्स मिले तो उसे पुश करेंगे और प्रोसेस करेंगे। और अगर ऐसी वर्टेक्स कोई मिल रही है जिसका कोई भी नेबरिंग नोड ऐसा नहीं है, एडजेसेंट नोड नहीं है जो अनविजिटेड हो, तो हम स्टेप 4 यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं बैक ट्रैकिंग स्टेप। अभी नहीं, स्टेप 3 और स्टेप 4 को रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाए वापस। आप देखिए स्टेप 1 में हम एम्प्टी स्टैक लेके चले थे, और जब स्टेप 3 और 4 को रिपीट कर करके और वापस हमारा एम्प्टी स्टैक स्टैक हमारा एम्प्टी हो जाए, तो अपनी एल्गोरिदम में स्टॉप कर देनी है। और उस मोमेंट पे जो भी एक ऑर्डर मिलेगा वर्टिसेस का, विजिटिंग ऑर्डर जो मिलेगा, वही हमारा ट्रेवर्सल ऑर्डर होगा। तो इस डीएफएस एल्गोरिदम में हम ये फाइंड आउट करते हैं कि इस पूरे गिवन ग्राफ को हम किस ऑर्डर में प्रोसेस कर सकते हैं, ट्रेवर्स कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए एक हमें सिंपल ग्राफ दिया हुआ है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई है। अब इस पर हमें डीएफएस अप्लाई करना है, मीन्स हमें ट्रेवर्सल ऑर्डर फाइंड करना है। ये हमें डीएफएस की वर्किंग दिखानी है कि कैसे डीएफएस के थ्रू हम इन सारी वर्टिसेस को विजिट करेंगे। तो पहला स्टेप, हम एक एम्प्टी स्टैक लेंगे, सपोज करिए उसका नाम एस है, और एक ब्लैंक ट्रेवर्सल लिस्ट लेंगे जिसमें अभी कोई एलिमेंट नहीं है, अभी ब्लैंक है। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, आपको नोड ए एज ए स्टार्ट वर्टेक्स दिया हुआ है। नोड या वर्टेक्स एक ही बात है। यहाँ पर नोड ए एज ए स्टार्ट नोड दिया हुआ है, तो हम किसी और नोड को नहीं लेंगे। अगर यहाँ पर स्टार्ट नोड गिवन नहीं होता तो हम किसी भी नोड को स्टार्ट नोड एज्यूम करके अपनी प्रोसेसिंग को स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ गिवन है इसलिए हम ए से ही स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले जो स्टार्ट नोड होता है, सबसे पहले उसे अपने स्टैक में पुश करेंगे, और जिसे पुश किया उसी को हम ट्रेवर्सल लिस्ट में भी इंक्लूड कर लेंगे। मीन्स हमने ट्रेवर्सल लिस्ट में इंक्लूड करने का मतलब इसको हमने ट्रेवर्स कर लिया, इसको हमने विजिट कर लिया। क्योंकि ट्रेवर्सल की डेफिनेशन ही होती है टू विजिट ए रिकॉर्ड एट वंस। एक बार विजिट कर लिया, उसी को ट्रेवर्सल बोलते हैं। उसका पर्पस कुछ भी है, प्रिंटिंग करानी है या हमें उसका वैल्यू अपडेट करनी है। तो ये ट्रेवर्सल का मीनिंग है। तो हमने ए को विजिट किया, उसे पुश किया और ट्रेवर्सल लिस्ट में इंक्लूड कर लिया। अब ए की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई, तो ए को हमने विजिटेड मार्क कर दिया, यह हमने रेड कलर में शो कर दिया है। अब ए के दो एडजेसेंट नोड हैं, मींस बी एंड एफ। तो इनमें से किसी को भी पिक कर सकते हैं हम, ताकि हम जिसको नेक्स्ट कौन से नोड को प्रोसेस करें, तो बी या एफ में से किसी को ले सकते हैं। लेकिन हमने एक कन्वेंशन फॉलो किया है कि हम जो अल्फाबेटिकली फर्स्ट आएगा उसको हम चूज करेंगे। तो बी और एफ में बी पहले आ रहा है, तो नेक्स्ट वर्टेक्स हम जो प्रोसेस करेंगे वो होगी बी। अब हम वर्टेक्स बी की तरफ मूव करते हैं, तो बी को सबसे पहले हम पुश करेंगे और उसको ट्रेवर्सल लिस्ट में इंक्लूड करेंगे। अब जब बी को हमने यहाँ पर प्रोसेस कर लिया, तो बी को विजिटेड मार्क कर देंगे। अब स्टैक को देखिए, स्टैक में टॉप मोस्ट नोड अभी कौन सा है? बी। तो यानी नेक्स्ट हमें किसकी प्रोसेसिंग करनी होगी? बी की। तो अब बी के प्रोसेसिंग करने का मीन्स क्या है कि बी के हमें सारे एडजेसेंट वर्टिसेस ढूंढनी है। तो बी की एडजेसेंट वर्टिसेस हैं ए, एफ एंड सी। लेकिन हमें डीएफएस में नॉन विजिटेड नोड ढूंढने होते हैं। जैसे बी का एडजेसेंट नोड ए भी है, बट ए इज ऑलरेडी विजिटेड। तो हम कहाँ फोकस करेंगे? एफ और सी पर। मीन्स हमारी जो नॉन विजिटेड एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ वर्टेक्स बी है वो क्या है? वर्टेक्स एफ एंड वर्टेक्स सी एंड वर्टेक्स ई। तीन तीन है, एक्चुअली चार है, लेकिन ए जो है विजिटेड है। तो बाकी की सी, ई एंड एफ ये कैसी हैं? जो अभी विजिट नहीं हुई है, और हमें इन्हीं की तलाश होती है कि कौन सी वर्टेक्स ऐसी हैं जो अभी विजिट नहीं हुई है। अब इनमें से सी, ई एंड एफ में हम अल्फाबेटिकली अगर मूव करेंगे तो सी की तरफ मूव करेंगे। तो फिर हम सब नेक्स्ट जो वर्टेक्स अपने स्टैक में पुश करेंगे वो होगी सी, और जिसको पुश करेंगे उसको हमने अपनी ट्रेवर्सल लिस्ट में इंक्लूड कर लिया। अब
सी की भी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई, तो सी को विजिटेड मार्क कर देंगे। अब देखिए अपने स्टैक में, देखिए इसमें टॉप मोस्ट नोड है सी, यानी नेक्स्ट किस नोड को प्रोसेस करेंगे। स्टैक में जो भी टॉप मोस्ट नोड होगा उसी की प्रोसेसिंग करनी होती है, हमें सबको मालूम है। तो सी नोड पर जो फोकस करेंगे, तो सी के जो नेबरिंग नोड्स हैं या एडजेसेंट नोड्स हैं वो है बी, एफ, ई एंड डी। लेकिन बी ऑलरेडी विजिटेड है, तो हम फोकस करेंगे एफ, ई और डी पर। अब इनमें से अल्फाबेटिकली जो पहले आ रहा है वो डी है, तो यानी कि सी के बाद हम मूव करेंगे डी पर। यानी कि नेक्स्ट हम किस नोड की प्रोसेसिंग करेंगे, कौन सा नोड विजिट करेंगे, वो होगा डी। तो डी की तरफ जाएंगे, मींस डी को हम पहले स्टैक में पुश करेंगे, फिर डी को अपनी ट्रेवर्सल लिस्ट में इंक्लूड कर लेंगे। अब ये डी को, इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई, तो इसको विजिटेड मार्क कर देंगे। अब डी के एडजेसेंट नोड ढूंढेंगे जो अभी विजिटेड नहीं है, नॉन विजिटेड है। तो डी के दो ही एडजेसेंट नोड है सी और ई, जिसमें से सी ऑलरेडी विजिटेड है, तो हमारे पास एक ही चॉइस बची है वर्टेक्स ई की या नोड ई की। अब ई को हम अपने स्टैक में पुश करेंगे, और चूंकि उसको विजिट कर लिया तो ट्रेवर्सल लिस्ट में इंक्लूड कर लेंगे, और विजिट होने के बाद से मार्क कर देंगे कि यह नोड अभी विजिटेड है। तो ई भी, node E is also marked as a visited node. Now, the vertex E has four adjacent nodes F, B, C, and D. But B, C, and D are already visited. So the only non-visited node of the vertex E is vertex F. So the next node that we have to process is the node F. So we push the vertex F into our stack and also include or add into the traversal list. ये भी आ गया। अब चूंकि इसकी भी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई है, तो इसको भी विजिटेड मार्क कर देंगे। अब टॉप मोस्ट नोड हमारे स्टैक में क्या है, एफ। लेकिन एफ का कोई भी ऐसा, एफ के एडजेसेंट नोड तो कई सारे हैं, ए है, बी है, सी है, ई है, लेकिन सारे के सारे विजिटेड है, कोई उसमें अनविजिटेड नोड नहीं है। मीन्स हमें एफ से कुछ भी नया नहीं मिल रहा है। तो याद करिए एल्गोरिथम जो पढ़ी थी, तो अभी तक तो स्टेप 3 यूज हो रहा था, क्योंकि हमें नए नए नोड, कम से कम एक नोड ऐसा मिल रहा था जो नॉन विजिटेड था। लेकिन एफ पर आने के बाद हमें ऐसा कोई नोड नया नहीं मिल रहा है जिसको हम आगे फर्दर प्रोसेस कर सकें, बिकॉज ऑल द नेबरिंग नोड्स और ऑल द एडजेसेंट नोड्स ऑफ नोड एफ आर ऑलरेडी विजिटेड। तो अब हमारा स्टेप 4 शुरू होता है, जिसे हम बोलते हैं बैक ट्रैकिंग स्टेप। क्योंकि एफ से कुछ मिल नहीं रहा है, तो एफ के पीछे कौन सा नोड है वहां पर आएंगे, शायद वहां से कुछ नया लिंक मिल जाए, तो इसको बोलते हैं बैक ट्रैकिंग स्टेप। तो इसको हम ऐसे समझा सकते हैं कि द टॉप वर्टेक्स ऑफ द स्टैक एस इज वर्टेक्स एफ, बट इट हैज नो एनी नॉन विजिटेड वर्टिसेस, देयरफॉर पॉप इट फ्रॉम द स्टैक। पॉप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एफ से तो कुछ मिलना नहीं है, तो एफ को हटा के नेक्स्ट देखेंगे, शायद ई से मिल जाए, इसीलिए हम पॉप करेंगे। तो एफ को हटा दिया। अब हमारा टॉप मोस्ट नोड स्टैक का ई है, ई की तरफ जाएंगे, लेकिन ई के भी जो चार के चार एडजेसेंट नोड हैं एफ, बी, सी एंड डी, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो अभी भी प्रोसेस ना हुआ हो, ऑल आर ऑलरेडी विजिटेड। सो ई से भी कुछ नई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो ई को भी हम पॉप कर देंगे। अब फिर आ गए हम, टॉप मोस्ट हमारा डी है, डी पर आए, सेम सिचुएशन वहां पर भी है, कोई ऐसा नोड वहां पर नहीं है जो, उसका कोई भी ऐसा एडजेसेंट नोड नहीं है जो भी विजिट ना हुआ हो, सारे के सारे विजिटेड हैं। तो डी से भी कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो डी को भी हम यहाँ से पॉप कर देंगे। सिमिलरली सी के साथ भी वही सिचुएशन है, सी को भी यहाँ से पॉप कर देंगे। बी पर आए, बी के साथ भी जितने भी एडजेसेंट नोड बी के हैं, ए, एफ एंड सी एंड ई, वो सारे के सारे विजिटेड हैं, तो यहाँ से भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो बी को भी पॉप कर दिया। अब हम वापस देखिए ए पर पहुंच गए, ए, बी, सी, डी, ई, एफ होते हुए आए थे, और फिर एक कोई अनविजिटेड नोड की सर्चिंग में हम वापस देखे, एफ से ई, ई से डी, डी से सी, सी से बी, बी से ए आ गए, लेकिन ए से भी हमें कोई अनविजिटेड नोड नहीं मिला, तो ए को भी पॉप कर दिया। अब देखिए स्टैक हमारा फाइनली फिर से एम्प्टी हो गया, स्टार्टिंग में भी एम्प्टी था और अभी फिर एम्प्टी हो गया, मीन्स अब हमें कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी है। और इस तरह से हमें एक ट्रेवर्सल ऑर्डर मिल गया। ये जो टी में नोड आ रहे हैं एक सीक्वेंस में आ रहे हैं, ए के बाद बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ। तो इन्हीं को हम बोलते हैं कि हमारा ये डीएफएस ट्रेवर्सल ऑर्डर बोलते हैं इन्हें, यानी ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, ई टू एफ। इस ऑर्डर, अगर हम किसी ग्राफ को डेप्थ फर्स्ट सर्च ऑर्डर में ट्रेवर्स करेंगे,
या डीएफएस ट्रेवर्सल उस पर शो करेंगे या उसको यूज करेंगे, तो हमारा जो ऑर्डर होगा ट्रेवर्सल का, विजिटिंग का, वो ऑर्डर होगा A to B, B to C, C to D, D to E, E to F। अब ये प्रोसीजर, बिकॉज यहाँ पर हमें स्टार्टिंग नोट दिया हुआ था A, तो हमें A से स्टार्ट करना था, लेकिन आप इसमें किसी भी नोट को मान के, अगर नहीं गिवन है तो किसी भी नोट से स्टार्ट कर सकते हैं, D से, B से, E से, F से, B से, कहीं से भी, और आपको एक नया पाथ मिल जाएगा। तो इसमें कोई यूनिक आंसर नहीं होगा। अगर आपने स्टार्टिंग नोट चेंज कर दिया तो आंसर आपका चेंज हो जाएगा। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हमने ट्रेवर्स किया था। ट्रेवर्सल पाथ हमारा क्या था, A to B, B to C, देन C to D, D to E, E to F। F पे हमें कुछ भी नया नहीं मिला था, तो वापस हम यहाँ से पॉप करते चले गए थे। मीन्स देखो, हम यहाँ पर बैक ट्रैक कर रहे हैं, जिस पाथ से आए थे ब्लू वाले पाथ से, उसी पाथ पर हम पाथ की रिट्रेसिंग कर रहे हैं, उसी पाथ पे वापस जा रहे हैं, बैक ट्रैक कर रहे हैं। येलो वाले से हमने बैक ट्रैक दिखाया है। डी से नहीं मिला तो सी पे सर्च किया, सी पे भी कुछ नया नहीं मिला, बी पे सर्च किया, बी से भी नहीं मिला तो ए की तरफ गए, और ए से ही हमने स्टार्ट किया था, और वहां से भी कुछ नहीं मिला, तो अब तो मजबूरी है कि हमने सारा पाथ ट्रेवर्स कर लिया। तो ये जो ब्लू पाथ था, ये डीएफएस ट्रेवर्सल पाथ था, और ये जो येलो कलर का पाथ दिखाया आपको, ये बैक ट्रैकिंग पाथ है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। पिछली बार हमने सिंपल ग्राफ लिया था, इस बार हमें डायरेक्टेड ग्राफ लेते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ को शॉर्ट में हम डाईग्राफ बोलते हैं। तो इस डायग्राफ में देखिए, यहाँ पर भी हमें स्टार्टिंग नोड गिवन है। अगर नहीं दिया होता तो हम कहीं से भी स्टार्ट करते, लेकिन यहाँ गिवन है तो हम ए से स्टार्ट करेंगे। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए किसी और नोट से भी स्टार्ट करके चेक कर सकते हैं। प्रोसीजर वही रहेगा जैसा आपको भी समझाया है। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। ए से स्टार्ट किया तो एक एम्प्टी स्टैक लिया और एक ब्लैंक ट्रेवर्सल लिस्ट ली। सबसे पहले जिस नोड को हम स्टार्ट नोड बोलते हैं उसको हम पुश करते हैं स्टैक में, तो हमने ए को पुश कर लिया। जिसको पुश किया यानी कि हमने उसे विजिट कर लिया, यानी ट्रेवर्स कर लिया, तो उसको ट्रेवर्सल लिस्ट में भी इंक्लूड कर लिया। अब ए की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई तो ए को विजिटेड मार्क कर दिया। अब हम ए के एडजेसेंट नोड ढूंढेंगे, उनको पुश करेंगे। तो ए का सिंगल एडजेसेंट नोड है नोड सी, क्योंकि ए से हम केवल सी की तरफ जा सकते हैं। दिखने में तो आपको बी और एफ भी उसके बगल में ही दिख रहे हैं, लेकिन चूंकि डायरेक्टेड ग्राफ है, डायरेक्टेड ग्राफ में हम एडजेसेंट नोड ऐसे ही फाइंड करते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर नोड से किसी दूसरे नोड का पाथ अवेलेबल है, एग्जिस्ट करता है, तो वो एडजेसेंट नोड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए, ए से हम केवल सी तक जा सकते हैं, डायरेक्ट जो कनेक्टेड है, एडजेसेंट नोड जो है। तो ए का एडजेसेंट नोड हो गया नोड सी। अब हम सी पर आ जाएंगे। सी हमारा विजिटेड भी नहीं था, यानी कि नॉन विजिटेड एडजेसेंट नोड था, तो सी को पुश करेंगे, और जिसको पुश किया मीन्स उसे विजिट कर लिया, और उसको हम विजिटेड मार्क कर देंगे। अब सी के दो नेबरिंग नोड हैं, बी एंड डी। अब हम कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन हमने जो कन्वेंशन यूज किया था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर और इन ऑर्डर, उसके बेसिस पे हम बी को सेलेक्ट करते हैं एज ए नेक्स्ट नोड दैट इज टू बी प्रोसेस्ड। तो बी को हमने पुश किया, बी को हमने ट्रेवर्सल लिस्ट में इंक्लूड कर लिया। बी की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई तो बी को विजिटेड मार्क कर दिया। अब बी से बी का एडजेसेंट नोड ढूंढेंगे, तो बी के दो एडजेसेंट नोड है ए एंड ई। ए इज ऑलरेडी विजिटेड, so the only non-visited adjacent node of B is E। तो E की तरफ आएंगे, नेक्स्ट प्रोसेसिंग E की करेंगे, मींस E को विजिट करेंगे। तो विजिट करने के लिए हमने क्या किया, उसे अपने स्टैक में पुश कर लिया, ट्रेवर्सल लिस्ट में इंक्लूड कर लिया, मींस इसकी विजिटिंग कंप्लीट हो गई, तो इसे विजिटेड मार्क कर दिया। अब E का केवल एक एडजेसेंट नोड है F, और वो नॉन विजिटेड भी है, तो नेक्स्ट हम F को पुश करेंगे और अपनी ट्रेवर्सल लिस्ट में इंक्लूड करेंगे। अब एफ की प्रोसेसिंग भी कंप्लीट हो गई, एफ को हमने विजिटेड मार्क कर दिया। एफ से हमें कोई ऐसा नोट नहीं मिल रहा है जिसकी हम फर्दर प्रोसेसिंग करें, यानी कि वो डेड एंड आ गया है। अब हमें बैक ट्रैकिंग स्टेप, यानी स्टेप 3 कंप्लीट हो गया है, अब हमें स्टेप 4 की तरफ जाना होगा, और इसको हमें पाथ की रिट्रेसिंग करनी पड़ेगी। अब हमने देखा कि एफ का कोई एडजस्टेड नोट था नहीं, तो एफ को पॉप कर दिया। नेक्स्ट हमारा टॉप मोस्ट नोट स्टैक का क्या है, ई। ई पर आए, ई से भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, क्योंकि ई का एक ही नोट एफ था, वो ऑलरेडी विजिटेड था। तो एफ से भी कोई, सॉरी, ई से भी कोई नया हमें नोट मिला नहीं जो अभी भी विजिटेड ना हुआ हो। तो ई को भी हटा देंगे, पॉप कर देंगे। अब हमारा स्टैक में टॉप मोस्ट नोट बी है। बी से दो नोड मिलने थे, ए और ई, दोनों की ऑलरेडी प्रोसेसिंग हो चुकी है, तो बी से भी कुछ नया हमें मिल नहीं रहा है, बी को भी पॉप कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉप मोस्ट नोड है स्टैक का, वो सी, यानी सी की प्रोसेसिंग करेंगे।
सी का दो एडजेसेंट नोड था बी एंड डी, तो बी तो प्रोसेस था, मीन्स विजिटेड था, लेकिन डी अभी भी अनविजिटेड है, नॉन विजिटेड है। तो नेक्स्ट हमारा जो नोड होगा वो होगा डी, जिसे हम प्रोसेस करेंगे, यानी कि डी को पुश करेंगे और डी को अपनी ट्रेवर्सल लिस्ट में इंक्लूड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए डी चूंकि विजिट कर लिया हमने, तो डी को विजिटेड मार्क कर देंगे। अब डी से हमें कुछ और नया इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही है, कोई ऐसा अनविजिटेड नोड मिल नहीं रहा जो उसका नेबरिंग नोड भी हो, तो डी को हम यहाँ से पॉप कर देंगे। सी पर आए, सी पर से भी कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, सी को भी पॉप कर दिया। फिर हम वापस पहुंच गए, हमारा अभी टॉप मोस्ट नोड क्या है स्टैक का, ए, यानी ए की प्रोसेसिंग करेंगे। और ए से भी कुछ मिलना नहीं, क्योंकि ए का एक ही नेबरिंग नोड था सी, वो ऑलरेडी विजिटेड है, तो ए को भी पॉप कर दिया। तो ये हमारा एक ट्रेवर्सल ऑर्डर हमें मिल गया, ए टू सी, सी टू बी टू ई टू एफ एंड एफ टू डी। सो इस तरह आप कोई भी गिवन ग्राफ में डीएफएस को आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको एक ट्रेवर्सल ऑर्डर मिल जाएगा। यहाँ पर भी मैंने ए लेकर के सॉल्व किया है, आप किसी दूसरे नोड को लेकर के सॉल्व करिए और आपको एक आउटपुट मिलेगा। सो थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, वी विल मीट इन सम अदर लेक्चर। थैंक यू।